And our mind is so silly actually. Like it is very easy for the water to just flow downwards because the gravity pull is there, so it just flows downward. And it is so difficult for the water to rise. If I want to take water to the 10th floor or the 5th floor water tank, I need a motor to pump it up. But to bring the water from the 5th or the 10th floor down, you don't need any pump. You just let the tap open, the water will flow all the way automatically down towards the ground. So the mind has that ability that it gravitates towards confusion, gravitates towards silliness, gravitates towards sensory pleasures. Like this story which I said, it's a true story of that soldier. At one point, he is leaving his marriage and running to Guru, that Guru has summoned me. And yet, in the way, his mind takes a little detour. He wants to just enjoy, and it's getting attracted, is getting, should I say, like a magnet pulls the iron. So the mind gets pulled towards that indulgences or the pleasures or those fleeting happiness moment which seems so doable to the person. It's the same mind. On one point is leaving the marriage. On another point wants to spend time with some dancing girl. What a, from one polarity to another. A lawful, socially acceptable woman is there to marry him. And the lure of having a wife, and the lure of having a good life with that wife was there. And he leaves everything and runs back that I have been summoned. And yet in the way, he wishes to go to a dancing girl. But the beauty of this story was that the God, whether it was, whatever it was, but somehow it rang the bell for him and his mind was shaken up and I cannot do this. And his mind was straightened up and he could see very clearly what he was supposed to do and what he was about to do. So wrong. So mind is always in this kind of yo-yo thinking. One moment I'll do this, one moment I won't do this, one moment I do this, another moment don't want to do this. Just today I was remembering one young girl who came to me and was staying in ashram, and she said, I don't want to get married, I want to be here and I want to be a sadhak and I want to do this and I want to serve and do the seva, blah, 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 blah. And I could see the shallowness and the fickleness of her mind. But yet I gave the chance. I said, okay, as long as, because I am a very strong believer that sometimes the things can change in just a moment. In an instant, sometimes the change can happen. So I could see the weakness and the vulnerability of this young girl. But yet, okay, fine, you stay here. Family was fighting, come back home. And she was saying, no, I will not go. So this went on for almost a year and a half. And in that year and a half, at least for a dozen times, I said to her that it's better that she goes back and she gets married and keep on listening satsang, keep on doing sadhana, but this ashram life is not for you. And she would cry, no, 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 no. It's better to die than to leave you. Okay, all the emotional melodrama she would throw. And then one fine day, without even meeting me or saying goodbye to me, 1.5 years, I was like doing everything for this person. And she never had the courtesy even to meet me and say eye to me and say this, that I wish to now go back. And yes, you have been saying to me a dozen times to go, and I was not, but now I have understood, so.
courtesy, that's common courtesy, but she couldn't even do that. She just left. She just left. And I got a letter which she left in the office. Well, I always wanted that for her. I always was saying this to her, that this ashram life is not for you. Because I don't see that vairagya in her. I was seeing the fickleness of her mind. And whatever she was saying, it was like a very childish thing. The childish, fanciful thinking. Mind, see how the mind plays the game. Mind plays this game. But the thing is, I always have the hope against hope. And so I am so willing to see the drama of the minds of people every now and then. Every now and then. And I also see this, that when the golden opportunity to transform their life from an ordinary person to become a yogi, to become a jnani, and they just drop it in between and run back to their pleasures and the comfortable life. Be it, so be it. Not a problem for my side. Klishta and akalishta. These are two types of the thought process which is going to be. And unfortunately, for most of the people, the mind has a lot of polluted thoughts only. And it's just like the top layer is very good, but beneath that it's all garbage. All the goodiness. गुरुजी हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम तो आपके बगैर रह नहीं सकते, बकवास। और जैसे छोटे बच्चों का ना दिल कभी आ गया खिलौने पे तो चाहिए, तो कई बार कहीं उनको हम खिलौना लगते हैं, अच्छा लग रहा है, कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है, तो हम यही ठीक है, हम यही रहेंगे। और मैं कहीं जाओ, नहीं, जितना बोलो जाओ वो कहेंगे उतने रहेंगे। फिर कई बार हमें ये समझ लगती है कि अपने मन के वेगों के साथ जो बंधे हुए लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ईसा को जब सूली दी गई थी तो उनकी मां उन्हें वहां मिलने को आई और रोने लग गई देख के, और वो बहुत रोई। और ईसा वहीं सूली पर लटके कहते हैं, ऐ औरत, तू किसके लिए रो रही है? यहां तेरा कोई बेटा नहीं है, मैं किसी का बेटा नहीं हूं। मां नहीं कहा, ऐ औरत, किसको रो रही है? मैं तेरा था कब, मैं तेरा हूं नहीं, रो मत, जा, यहीं से चली जा तू। मैंने उस भयंकर पीड़ा को सहते हुए पर भी उनकी मां के प्रति, जैसे होता है ना, चोट लग जाए और मां दिख जाए तो सारे ही रोने लग जाते हैं। जो नहीं पहले रोया होता बच्चा वो भी मां देखे तो रो लेता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल स्थिति अलग है। वो कहते हैं, औरत तू क्यों रो रही है यहाँ पर? तू जाके प्रार्थना कर, अपने लिए कर, मेरे लिए नहीं, अपने लिए कर। कितनी क्लैरिटी। पर ब्लैंकनेस हम किसको कहेंगे? मतलब क्या ही रिस्पॉन्ड करें इस सिचुएशन में। जैसे एक ने मुझे बताया, किसी के घर गए, कोई फ्रेंड थे, उनके घर गए। अब वो बात सुना रहे कि हम उनके घर गए तो क्या हुआ। तो कहते हैं कि जब हम वहां गए ना, वो बैठाएं फिर हम फिर बैठ जाएं, वो बैठाएं हम फिर बैठ जाएं। कहना ये था कि हम जाना चाहें और वो फिर बैठा दें हमको, और वो बोले क्या, वो बैठाएं और हम फिर बैठ जाएं, वो फिर बैठाएं और हम फिर बैठ जाएं। मैं आप क्या कहना चाह रहे हो, बैठाएं फिर बैठ जाएं?
कहती नहीं नहीं, वो ऐसा था, हम जाना चाहें और वो हमें बैठा दे तो हम फिर बैठ जाएं। हम जाना चाह रहे हैं और वो हमें जाने नहीं देना चाह रहे तो पकड़ के बैठा देते, पर जल्दबाजी में मुंह से क्या निकला, वो बैठाएं हम फिर बैठ जाएं, वो बैठाएं हम फिर बैठ जाएं। मन क्या है? मन वही है, ये बार बार फिसल जाता है, बार बार कंफ्यूजन में चला जाता है, बार बार असमंजस में चला जाता है। ये करें ये नहीं करें, ये करें ये नहीं करें। और फिर इतना दिमाग तो है नहीं ना कि ज्यादा देर उस पर सोचे। तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां जाके ना वो बिल्कुल मैदान साफ, सुपड़ा साफ, अब वो कुछ भी नहीं सोच रहा। इसे हम कहते हैं ब्लैंक हो जाना। तो ब्लैंक हो जाना कहीं से भी अच्छा नहीं किसी के लिए भी अच्छा नहीं। कई बार जैसे कई लोग जब मिलने आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका क्या नाम है, तो इतने एक्साइटेड होते हैं इन पर्सन मिलके, तो 2 मिनट को अपना नाम ही नहीं बता पाते, कहाँ से आए हो, फंबल करते हैं, जवाब ही नहीं दे पाते। सांस लो, बैठो, अभी थोड़ी देर में एक्साइटमेंट बैठ जाएगी तो फिर हम दोबारा पूछ लेंगे। ये जो मन है, ये हमारा मन अजब तमाशा करता है, और जिस चीज के विषय में स्पष्टता नहीं होती है ना, तो उस विषय में वो सोच भी कुछ नहीं पाता है, फिर वो खाली हो जाता है। पर ये अच्छा वाला खाली नहीं है। जब मन तनाव रहित होता है, विश्राम में होता है, तब भी मन कुछ सोचता नहीं, मन में कोई विचार नहीं चलते, पर ये जो मन का विश्राम है ये अच्छा होता है। पर जिसको तुम ब्लैंक कहना होना कह रहे हो वो अच्छा नहीं है। और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, बीइंग इन अ लिम्बो, डोंट नो व्हाट टू डू, दैट इज व्हाट ब्लैंकनेस इज। एंड कामनेस इज दैट your mind is not getting disturbed or irritated or perturbed for anything, and so it's like point blank quiet. And this quiet mind is a great mind. उलझन नहीं हो, संशय नहीं हो, क्या करें क्या नहीं करें ऐसी कोई दुविधा भी नहीं हो, और मन में कोई वेग भी नहीं हो, तो फिर मन की स्थिति क्या होगी? फिर होगा मन शांत। तो शांत मन बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा मन वही है ना, ऊपर से नीचे पानी जैसे बिना मेहनत के आ जाता है ना, ऐसे ही मन जो है हमारा उलझन में, तकलीफ में, प्रश्न में, संशय में बड़ी जल्दी आ जाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में मन का इस तरह से नकारात्मक रूप से खाली हो जाना अच्छा नहीं है। मन का तनाव रहित होना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जिससे हम पतंजलि योग शास्त्र जिसको कहते निर्विकल्प हो जाना, तो निर्विकल्प होना ब्लैंक होना नहीं होता है। निर्विकल्प मतलब मन इतना एकाग्र हो गया, अब इतना सुस्पष्ट हो गया है कि वो आर पार, जैसे शीशे, साफ शीशे से हम बाहर देख सकते हैं, लेकिन ठोस बनी दीवार से हम आसपास आर पार नहीं देख सकते हैं। एकाग्र हुआ मन इतना क्लियर, इतना स्पष्ट होता है कि उसका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का, वो इतना स्पष्ट होता है कि आप उसका चेहरा देखिए, ठहराओ। महात्माओं को, गुरु को मिलने में तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब आप गुरु के समीप जाते हो तो गुरु का ठहराव, गुरु की निर्विकल्पता, गुरु के ज्ञान का तेज, गुरु की प्रज्ञा का प्रकाश, वो आपको मिलता है सहजता से। गुरु देता नहीं है, उसके लिए वो ये कुछ क्रिया नहीं कि जो वो करेगा तो वो देगा। जैसे आप सूर्य के प्रकाश में अगर आ जाएंगे तो रोशनी मिल ही जाएगी ना, सूर्य को कोई अलग से मेहनत थोड़ी करनी पड़ती।
ऐसे ही गुरु के समक्ष जाने पर, ज्ञानी के पास जाने पर, ज्ञानी की स्पष्टता, ज्ञानी की एकाग्रता, ज्ञानी के ज्ञान का ओज, ज्ञानी की प्रज्ञा का प्रकाश, वो दर्शन अभिलाषी को सहज से मिल जाता है। लेकिन अगर आए हुए व्यक्ति को उस निर्विकल्पता की अभिलाषा ही नहीं थी तो फिर प्राप्त भी तो क्या ही करेगा ना। मैंने जैसे कोई आंख पर काली पट्टी बांध के सूर्य के सामने चला जाए तो सूर्य का प्रकाश थोड़ी मिलेगा फिर, तो इसमें दोष सूर्य का तो कोई नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी का, गुरु का जो संग है वो उसी को बदल सकता है जो बदलने को तैयार हो। जो खुद बदलने को तैयार नहीं है, वाणी में बड़े कठोर शब्द हैं, कबीर साहब भी कहते हैं, बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माहे समाये। बिष्टा मतलब फीसिस, फीसिस में उत्पन्न कीड़े जैसा है वो इंसान, वहीं जन्मता है, वो वहीं मर जाता है, उसके जीवन में कोई और उपलब्धि नहीं होती, कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा मन स्पष्ट हो, हमारा मन विवेकी हो, हमारा मन शांत हो, उसके लिए बहुत बहुत वीरता, प्रयास, मेहनत, एकाग्रता, साधना की जरूरत होती। और जो ये सब नहीं करते उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बड़ी सुंदर पंक्ति आती, पूरा सतगुरु के करे जे सिखन में चूक। पूरा गुरु क्या करे अगर शिष्य में गलती है, चूक गया, माने अवसर मिला था और वो चूक गया, तो पूरा सतगुरु के करे जे सिखन में चूक। अंधे एक न ला गई जो बांस बजाई फूक। ये जिसके अंदर वो ज्ञान की अभिलाषा ही नहीं है, वैराग्य ही नहीं है, उसके लिए तो पूरे से पूरा गुरु भी कुछ नहीं कर सकेगा। वो अंधा है, अंधे को अब क्या दिखाएं। अंधे को ला के सूरज के सामने खड़ा कर दे तो अंधा उतने से तो सूर्य नहीं देख सकता है। तो जो बांस बजाई फूक, कि जैसे बांस में कोई फूक मारे, इधर से फूक मारी उधर से निकल गई, उसका कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञानी गुरु के, सदगुरु के समीप जाकर के भी जो मन से अंधा है वो गुरु से कोई लाभ नहीं ले पाएगा। शायद वो जाके कल दूसरों से कहेगा जी कोई खास चीज नहीं थी गुरुजी, ठीक से ही है, मतलब अब वो उसको, भाई एक गधे के गले में तुम हीरा टांग दो तो क्या गधा जानेगा कि ये हीरा है?